ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر کی لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ ماڈلنگ کے نام پر لڑکیوں کو کہتے کہ وہ جو ڈریس لیں اس میں اپنی تصویر دیں اور فری میں ڈریس لے لیں۔ اس طرح جو لڑکی آتی مہنگے ڈریس لے کر ایک تصویر دے جاتی۔ مجھے بہت غصہ آتا، لیکن حیرت کی بات تھی سارے کپڑے فری میں جانے کے باوجود شوہر دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا۔ جبھی ایک دن اپنے حیدرآباد سے آنے والی کزن کو ان کی دکان پر بھیجا تاکہ راز معلوم ہو سکے۔ وہ تصویر دیکھ کر گھر آ گئی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری کزن کے میرا نام زیبا ہے، فرحات سے میری ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی، جہاں پر اس کی لیڈیز کپڑوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنے بڑے شاپنگ مال میں نہیں گئی تھی، کیونکہ ہم لوگ درمیانے طبقے کے لوگ تھے اور اتنی بڑی دکانوں سے خریداری کرنا کہاں ہمارے بس میں ہوتا تھا۔ میں تو اپنے محلے میں لگنے والے سستے بازار سے ہی اپنی ہر چیز خرید لیا کرتی تھی، وہ بھی کئی مہینوں بعد۔ اگر کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تو اماں سے پیسے مانگ کر میں وہ چیز خرید لیتی تھی۔ بڑی دکانوں میں جانے کا تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن اماں مجھے کبھی لے کر نہیں گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ بڑی دکانیں بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا وہاں پر کیا کام ہے؟ مگر میں اماں سے کہتی تھی کہ ضروری نہیں کہ اگر ہم جائیں تو کچھ خریدے بھی، انسان دیکھنے بھی تو جا سکتا ہے۔ فریحہ سے میری دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ اس کا تعلق امیر گھر سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اپنے جیسی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی، لیکن نہ جانے پھر اس کو میں کہاں سے اچھی لگی کہ اس نے خود ہی میرے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس سے میں نے خوشی سے تھام لیا۔ امیر لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ جاننے کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی سہیلیاں بنانے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں جس کو دل کرتا اپنی دوست بنا لیتی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی، وہ اسکول جاتی تھی جبکہ میں کالج جایا کرتی تھی۔ فریحہ سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی، جیسا کہ اس کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی خوشی سے ہمارے گھر آتی اور سب سے ملتی تھی۔ کبھی کبھار میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جسے دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ کاش ہمارا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ کاش فریحہ میری دوست ہونے کی بجائے میری بہن ہوتی تو میں بھی اسی گھر میں اس کی طرح عیش و آرام سے رہتی۔ اس کو دیکھا دیکھی میں بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے اب عام سستی چیزیں پسند نہیں آتی تھیں اور میں اماں سے صاف کہہ دیتی تھی کہ اگر انہوں نے میرے لیے کچھ خریدنا ہوتا ہے تو کسی بڑی دکان سے خریدا کریں، کیونکہ اب میرا واسطہ امیر دوستوں سے ہے۔ ایسے میں یہ سستے سے بازار کی چیزیں پہن کر میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ماں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ میرے مہنگے شوق پورے کریں۔ میں جب بھی فریحہ کے گھر جایا کرتی تھی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ تحفے میں مجھے ضرور دیتی۔ وہ بہت ساری چیزیں ایسے اٹھا کر مجھے دے دیا کرتی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی تھی کہ اس سے چیزیں لینے کی اور مہنگی چیزیں استعمال کرنے کی۔ میں آئے دن اس کے گھر چلی جاتی اور وہ مجھے ڈھیر ساری چیزیں اٹھا کر دے دیتی، جس میں زیادہ تر 1-2 دفعہ استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن میرے لیے تو وہ نئی ہی ہوتی تھیں۔ میں جب بھی اس کے گھر سے ہو کر آتی تو یہی سوچتی کہ امیروں کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے، وہ جو چاہے خرید سکتے ہیں۔ کیا ہی ہوتا کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح امیر ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور اس چیز کو میں اپنی بدقسمتی سمجھتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے فریحہ نے بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی منگنی کو لے کر بہت خوش تھی۔ اس کے سسرال والے بھی ان کی طرح امیر تھے اور جس لڑکے سے اس کی منگنی ہو رہی تھی وہ بھی اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک ہی چیز آئی تھی کہ اگر مجھے بھی امیر ہونا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کسی امیر انسان سے شادی کر لوں، کیونکہ جس طرح کے ہمارے گھر کے حالات ہیں ایسے میں امیر ہونا وہ بھی اس زندگی میں ناممکن تھا۔ امیر ہونے کا سب سے آسان اور شارٹ طریقہ یہی تھا کہ کسی امیر انسان سے میری شادی ہو جاتی، لیکن ایسا انسان مجھے کہاں ملتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔
फरीहा के घर मंगनी की तैयारियां चल रही थीं और बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता। ऐसे में मैंने भी उसके घर आना जाना ज़्यादा कर दिया था कि हो सकता है उसके अमीर रिश्तेदारों में से कोई मुझे पसंद कर ले और मेरा रिश्ता ले ले। अम्मा भी मुझे उसके घर जाने से नहीं रोकती थी। वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि मेरा किसी अमीर घर में रिश्ता हो जाए ताकि मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते में आसानी हो। मैं उसके साथ उसके हर काम में होती थी, हर छोटे से छोटा काम खुद करती थी। वो जब भी शॉपिंग के लिए बाजार जाती तो मैं उसके साथ जाया करती थी। उस दिन मैं पहली बार इतने बड़े शॉपिंग मॉल में उसके साथ शॉपिंग पर आई थी। वहाँ मौजूद इतनी कीमती चीज़ें देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे जो अपने मोहल्ले में लगने वाले सस्ते बाजार में बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता था, लेकिन यहाँ हर चीज़ जिस पर मेरी नज़र पड़ती वो मुझे अच्छी लगती, लेकिन इनको ख़रीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। फरीहा ने मुझे एक सूट दिलवा दिया था, जिसकी वजह से मैं खुशी खुशी उसकी शॉपिंग बैग उठाए उसके पीछे पीछे थी और वो मेरे आगे। जिस दुकान में जाती मैं उसके पीछे चली जाती। वहाँ पर कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। जहाँ फरीहा दाखिल हुई मैं भी उसके पीछे चली गई। उसमें बहुत अच्छे अच्छे और कीमती सूट थे। मैं जो बड़े गौर से सारे कपड़ों को देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के पर गई जो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैं हैरान थी कि वो मुझे क्यों देख रहा है, जबकि वो खुद देखने में भी अच्छा खासा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि शायद वो किसी और को देख रहा हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मैं मौजूद थी। एक दफ़ा मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर बार बार मेरी नज़र उसकी तरफ जा रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या वो अभी भी मुझे ही देख रहा है, जबकि वो मुसलसल जब से हम लोग इस दुकान में आए थे इसकी नज़रें मेरे ऊपर थीं। काफ़ी देर के बाद फरीहा ने एक सूट पसंद किया था। इन लोगों ने उसे पैक कर दिया जैसा कि उसके सारे शॉपिंग बैग्स मैंने उठाए हुए थे। वो सिर्फ चीज़ें पसंद करती थी, बाकी वहाँ से लेना मेरा काम होता था। वो सूट भी मैं जब लेने गई तो उस लड़के ने मुझे दिया था और साथ साथ अपना कार्ड भी दिया था। उसका कहना था कि इस कार्ड के पीछे उसने अपना नंबर लिखा है, ये दुकान उसकी अपनी है, इसलिए उसने एक सूट अपनी पसंद से मेरे लिए भी इसमें डाल दिया है। उसका कहना था कि वो सूट इसकी तरफ से मेरे लिए तोहफा है। मैं हैरान थी कि उसने मुझे तोहफा क्यों दिया था। खैर मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। अपना सूट मैंने रास्ते में ही निकाल कर अलग कर लिया था। इसका कार्ड भी मैंने अपने पर्स में रख लिया था। फरीहा को उसके घर छोड़कर मैं अपने घर वापस आ गई थी। जो सूट उस लड़के ने मुझे दिया था बहुत ही खूबसूरत और महंगा था। मैं बार बार सूट को देख रही थी और इस कार्ड को भी। मैंने सोचा था कि मैं इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसको फ़ोन करती हूँ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। इतनी बड़ी दुकान उसकी अपनी थी, उसका मतलब ये था कि वो अमीर भी होगा और मैं उससे अच्छी लगी थी। ये बात मैंने अम्मा को बताई तो उनका कहना था कि हो सकता है वो वहाँ पर काम करने वाला कोई मामूली सा मुलाजिम हो और झूठ कह दिया हो कि वो दुकान उसकी अपनी है। माँ का कहना था कि मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे अपनी दोस्त की मंगनी में बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर जाना है। उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि मेरी शादी फरीहा के अमीर रिश्तेदारों में से कहीं हो जाए, ना कि किसी आम दुकानदार के साथ। अम्मा की बात भी ठीक थी। उनका कहना था कि जो सूट मुझे मिल गया है बस ठीक है, इसे लेकर रख लूं और दोबारा इस लड़के की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको कोई फ़ोन करने की ज़रूरत है। अम्मा की बात मानते हुए मैंने वही किया था जो उन्होंने कहा। फरीहा की मंगनी में बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर गई थी। अपने तौर पर मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, लेकिन इनके फंक्शन के हिसाब से मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वहाँ किसी ने भी मुझ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि फरीहा की अम्मी ने मुझे मेहमानों को बैठाने और उन्हें चीज़ें पेश करने वाले कामों पर लगाए रखा था। और मैं ये समझ रही थी कि इनकी अमीर आंटियाँ मुझे देखकर मेरे बारे में पूछेंगी, लेकिन वहाँ किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा था। शायद मुझे काम करता देखकर सबको यही लग रहा था कि मैं उनकी कोई काम वाली हूँ, मुलाजमा हूँ। जबकि एक औरत ने मेरे बारे में पूछा था, मैं बड़ी खुश हुई थी। लेकिन जब फरीहा की अम्मी ने ये कहा कि ये हमारी मेड की बेटी है, मंगनी के काम में मदद करवाने के लिए आई हुई है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। इतनी मतलबी, खुदगर्ज और चालाक औरत सारे फंक्शन का इंतज़ाम और मंगनी की सारी तैयारियां मुझसे करवाईं,
घर का काम करवाया ये कहकर कि मैं फरीहा की दोस्त हूँ और ये सब मुझे ही करना है। जबकि किसी को बताने की बारी आई थी तो मुझे नौकरानी की बेटी बना दिया था। सच कहते हैं कि ये अमीर लोग किसी के नहीं होते। हो सकता था कि इस औरत को मैं अच्छी लगी होती, लेकिन फरीहा की अम्मी ने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी थी। मैं जितने अच्छे और खुशगवार मूड में गई थी उतने ही बुरे मूड में घर वापस आई थी, क्योंकि मंगनी के सारे फंक्शन में फरीहा ने मुझसे एक बार भी बात न की थी। वो ऐसे अनजान बन रही थी जैसे मुझे जानती ही ना हो, और मुझ पर ऐसे हुक्म चला रही थी कि जैसे मैं उसकी दोस्त नहीं मुलाजमा होती हूँ। मुझे लगा था कि वो अपनी दोस्तों से मुझे मिलवाएगी, जबकि उसने तो मुझे अपने पास एक बार भी नहीं आने दिया था और अपनी बाकी दोस्तों के साथ बातें करती रही थी। मुझे समझ आ गया था कि उसने मुझसे दोस्ती सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए की है। उसने मुझे अपनी मुलाजमा बनाकर अपने साथ रखा हुआ था, ना कि दोस्त समझकर। उसे अपने पैसे पर मान और गरूर था और मुझे उसका गरूर हर हाल में तोड़ना था। मैं जो पहले अमीर घर में शादी के ख्वाब इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं अमीर होना चाहती थी, अब फरीहा को नीचा दिखाने के लिए भी अमीर घर में शादी करना मेरा सबसे बड़ा मकसद बन गया था। लेकिन फरीहा के ज़रिए ही मैं उनके लाइफस्टाइल में दाखिल हो सकती थी। इसके बगैर ना तो मेरी किसी भी लड़की से दोस्ती थी और ना ही मेरा कहीं आना जाना था। इसकी मंगनी के बाद 2 दिन गुजर गए थे जब मेरी उससे कोई बात ना हुई थी कि अचानक से मेरी खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उनका बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा और पुलिस में अच्छी नौकरी भी करता था। किसी भी आम लड़की के लिए इस किस्म का रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब होगा, लेकिन क्योंकि मुझे फरीहा के मुकाबले जितना अमीर होना था, इसलिए अपनी खाला के बेटे से शादी नहीं कर सकती थी। मैंने माँ को फ़ौरन इनकार कर दिया था, जबकि उनका कहना था कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। उनके पास गाड़ी है, घर उनका अपना था, लेकिन वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और गाड़ी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी जिसके लिए मैं उससे शादी कर लेती। अम्मा ने मुझे इस बात पर ज़्यादा मजबूर नहीं किया था, जबकि बाबा ने इस इनकार पर मुझे खूब सुनाई थी। उनका कहना था कि बिलावजह मैंने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर दिया है, जाने मैं किस शहजादी की आस लगाए बैठी हूँ। जबकि मैं उनकी सारी बातें सुन लिया करती थी, ये सोच कर के जिस दिन मेरे दिन बदलेंगे वो मेरी शादी किसी अमीर घर में होगी। उस दिन बाबा खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और पुराने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। फरीहा से तो अब मैं कोई बात करना नहीं चाहती थी। ऐसे में मुझे वही लड़का याद आया था जिसने मुझे अपना कार्ड दिया था। अगर तो वो सच कह रहा था कि वो दुकान उसकी अपनी थी, ऐसे में वो रिश्ता बुरा नहीं था। मैंने फ़ौरन से अपने पर्स से उसका कार्ड निकाला और उसे शुक्रिया बोलने के लिए फ़ोन किया था। साथ साथ ये भी कहा था कि मैं अपनी दोस्त की मंगनी में मसरूफ़ थी, इसकी वजह से उससे बात नहीं कर पाई थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की। इस तरह हम दोनों के बीच बात चल पड़ी थी। मैं उससे मिलने उसकी दुकान पर चली जाती थी और वो मुझे महंगे महंगे सूट तोहफे में दे दिया करता था। हमारी जान पहचान को कोई 6 महीने गुजर गए थे जब मैंने उससे ये कहा था कि अगर वो मुझे वाकई में पसंद करता है तो अपने घर वालों को मेरे घर भेज दे। जब उसने मुझे बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है, उसके माँ बाप का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था, ऐसे में ना तो कोई ऐसा रिश्तेदार है कि जिसे वो मेरे घर भेज सके, लेकिन रिश्ते के लिए किसी न किसी को तो हमारे घर आना था। इसका कहना था कि वो खुद मेरे घर आकर मेरे अब्बा से बात करेगा। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आया था। अब्बा अचानक से अपने सामने एक लड़के को देखकर हैरान थे। ऊपर से ना उसके आगे का कुछ पता था और ना ही पीछे का। अब्बा ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो किसी भी राह चलते इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ हरगिज़ नहीं दे सकते। लेकिन मैंने अब्बा की एक ना सुनी और मैंने उनसे यही कहा था कि अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ न की तो मैं अपनी मर्ज़ी से फरहाद से शादी कर लूँगी। अम्मा ने भी अब्बा को ये कहा था कि वो मेरी शादी इससे करवा दें। मेरे अब्बा मजबूर हो गए थे और ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरी शादी फरहाद से करवा दी थी। लेकिन शादी के बाद उनका ये कहना था कि आज के बाद मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। मैं इस लड़के के साथ जिस हाल में भी रहूं, ये मेरा मसला है। वो मेरी किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा शौहर अच्छा कमाता था और अमीर था, ऐसे में मुझे इन लोगों से भला क्या ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन आते वक्त मैंने उनसे यही कहा था कि अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़े
तो वो ज़रूर मेरे पास आ सकते हैं। फरहाद मुझे घर ले आया था। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। उसका कहना था कि ये उसका अपना घर है और आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं बहुत खुश थी और हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए थे। फरहाद ने मुझे हर आसाइश दी थी। हम आए दिन बड़े बड़े होटलों में जाते और ढेरों शॉपिंग करते। फरीहा को मैंने फ़ोन करके बताया था कि किस तरह मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। वो मेरी बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी और फिर उसके बाद उसने कभी मुझे फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं किया था। शायद मेरी खुशियों से मेरी किस्मत से जल गई थी। वो हमेशा मुझ पर अपनी दौलत का रौब दिखाती थी। मुझे ये बताती थी कि वो बहुत अमीर है, जबकि अब मैं उसके मुकाबले पर थी, तो इसीलिए उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। मुझे उसके बात करने से या ना करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए था मुझे मिल गया था। अम्मा और मेरी छोटी बहन अब्बा से छुपकर मुझसे मिलने आ जाया करती और मैं उनको चीज़ें और पैसे वगैरह दे दिया करती थी। अपनी छोटी बहन को भी काफ़ी सारे चीज़ें दिलवा दिया करती थी। एक दिन इसी तरह अम्मा छोटी बहन को लेकर आई थी। जब मैंने उनको अपने शौहर की बड़े से मॉल में बड़ी सी दुकान दिखाने का फ़ैसला किया और उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ी थी। लेकिन जैसे ही अम्मा और अपनी बहन को इस बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर पहुंची, वहां इस दुकान पर मेरा शौहर कहीं मौजूद नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ था कि ये दुकान तो किसी और की है, उसका असल मालिक कोई और है, जबकि वो यहाँ एक सेलमैन था और उसने कुछ महीने पहले ये नौकरी छोड़ दी है। मैं बहुत हैरान हुई थी और परेशान भी कि उसने मुझसे झूठ बोला था। अम्मा और छोटी तो वहीं से घर चली गईं, जबकि मैं घर आई थी और मुझे अपने शौहर के आने का इंतज़ार था। उसके आते ही मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था, जबकि उसका कहना था कि वो दुकान उसने बेच दी है, अब उसने कहीं और दुकान बनाई है। मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया और मज़ीद कोई इस बारे में कोई बात न की। जब अम्मा ने मुझे बताया कि मेरे मोहल्ले में जो मेरी पुरानी सहेली है उसकी शादी है और उसने शादी के कपड़े ख़रीदने हैं, मैंने अपने शौहर से बात की और उसकी दुकान का कार्ड उसे दे दिया था। उसी दिन शाम को मुझे उसका फ़ोन आया और उसने मेरा और मेरे शौहर का शुक्रिया अदा किया था। उसका कहना था कि मेरे शौहर ने उसे फ्री में कपड़े दिए हैं। उसने जितने भी कपड़े वहाँ से ख़रीदे हैं वो सब फ्री के हैं। बस इन सारे कपड़ों में उसने एक एक तस्वीर दी है मॉडलिंग के लिए। वो बहुत खुश थी क्योंकि उससे मॉडल बनने का भी बहुत शौक़ था। उसका कहना था कि मैं अपने शौहर से पूछकर बताऊं कि इसकी तस्वीरें कब किस मैगज़ीन में आएंगी। इसकी सारी बातों से मैं हैरान थी कि वो क्या कह रही है। इसे मुख्तसर सा जवाब देकर मैंने फ़ोन रख दिया था और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी थी। जब वो घर आया तो मैंने उससे सब पूछा था कि क्या वो अपनी दुकान पर आने वाली हर लड़की को ऐसे ही फ्री के कपड़े देता है, जबकि उसका कहना था कि ये उसका काम है, मैं इसमें दखल न दूँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे ये बात मालूम हो गई थी कि जो भी लड़कियां वहां पर कपड़े ख़रीदने आती हैं अपनी मर्ज़ी के महंगे महंगे कपड़े उठाती और एक तस्वीर देखकर फ्री में वो कपड़े अपने साथ ले जाती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि सारे कपड़े फ्री में जाते थे। इसके बावजूद मेरा शौहर अमीर से अमीर होता जा रहा था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता था, ये सोचने वाली बात थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से था। एक दिन अम्मा से बात करते हुए मुझे मालूम हुआ था कि मेरी हैदराबाद वाली कज़न हमारे घर आई हुई है। अम्मा ने बताया था कि वो पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आई है और हमारे घर में रहेगी। मैंने फ़ौरन से कहा था कि इस बार अगर वो मुझसे मिलने आए तो उसे भी साथ लेकर आएं। ये आम सी बात है कि जब हमारे पास कुछ होता है तो हम इस पर गरूर करने लगते हैं। ऐसा ही गरूर मेरे अंदर भी था। मैं चाहती थी कि मेरे रिश्तेदार मेरा मुकाम देखें, मुझ पर रश्क करें। शायद इसीलिए मैंने माँ से ये कहा था कि मेरी कज़न को मेरे घर लेकर आएं। मेरे कहने पर एक दिन माँ मुझसे मिलने आई तो उससे अपने साथ मेरे घर लेकर आईं। उसने मेरे शौहर के बारे में मुझसे पूछा, उसके कारोबार का पूछा था कि वहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरा शौहर क्या गेम खेल रहा था, इसलिए मैंने अपनी कज़न को अपने साथ मिला लिया था। वो बहुत अच्छी और मासूम सी लड़की थी। ऐसे में मैं उससे जो भी कहती वो खुशी से मान लेती। मुझे यकीन था कि वो इसकी मदद से मेरा काम भी हो जाएगा और वो किसी को इस बारे में कुछ बताएगी भी नहीं। मैंने अपनी इसी कज़न को अपने शौहर की दुकान पर भेजने का सोचा था।
میں نے ویسا ہی کیا۔ اپنے پلان کے مطابق میں نے اپنی کزن کو اپنے شوہر کی دکان پر بھیج دیا اور سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کچھ وقت بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے سمجھانے کے مطابق اس نے ایک سوٹ پسند کر لیا تھا اور دکان والوں کو تصویر دے آئی ہے، سوٹ اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس وقت میرے گھر میں ہی موجود تھی۔ اسے تصویر دے کر آئے ہوئے ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری کزن کے فون پر اس کی نازیبا تصاویر آئی ہوئی تھیں، جن کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں خود حیران تھی کہ یہ سب کیا تھا، جبکہ اس نے تو دکان والے کو اپنی ایک صحیح تصویر دی تھی، تو یہ تصاویر کیسے کسی نے بنائی؟ اس وقت میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ تصاویر خود سے بنائی گئی ہیں میری کزن کی، اسی تصویر کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان دکان والوں کو دی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان لوگوں نے اس سے فون کیا تھا اور اس سے پیسے مانگے تھے، اور وہ سوٹ جو اسے فری میں دیا تھا وہ بھی واپس دینے کا کہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا یا پیسے نہ دیے تو وہ یہ ساری تصویریں سب میں پھیلا دیں گے، اس کے گھر سب سے پہلے بھیجیں گے۔ وہ معصوم تھی، ویسے بھی جو کچھ ہوا تھا کوئی بھی ڈر جاتا۔ وہ ان ساری چیزوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے کہنے پر یہ سب کیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ وہ تو یہاں پڑھنے آئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر کا کام سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس طرح سے لڑکیوں کو بیوقوف بناتا تھا اور ان سے پیسے لوٹتا تھا۔ یہیں سے اس نے کتنا پیسہ کمایا تھا۔ سوٹ بیچنے کی بجائے انہیں فری میں دیتا تھا اور پھر بلیک میل کر کے وہ سوٹ بھی واپس لے لیتا تھا اور پیسے بھی نکلواتا تھا، اور پھر وہی سوٹ کسی نئی لڑکی کو دے دیتا، اور جو لڑکیاں ناسمجھ اور معصوم ہوتی تھیں وہ اس کے جال میں پھنس جاتی تھیں، اور کچھ میری طرح تھوڑی لالچی ہوتی تھیں، وہ بھی لالچ میں آ کر اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اس لیے اس نے عام سی مارکیٹ میں دکان کھولی تھی کہ کوئی اس تک پہنچ نہ پائے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہاں پر آنے والی لڑکیوں کا تعلق عام گھرانوں سے ہوتا ہے، ایسے میں وہ اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ عزت کے ڈر سے بیچاری گھر کی ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے پیسے سے محبت تھی اور میں عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کر ہرگز نہیں۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی کزن کو سارے معاملے سے نکالنا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی میری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف صاف بات کرنے کا سوچا۔ جیسے وہ گھر آیا ساری حقیقت میں نے اس کے سامنے کھول کر رکھ دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کبھی یہ سچ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ مجھے خود اس بات کا پتہ چل گیا ہے، ایسے میں مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور جہاں تک بات میری کزن کی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی اس سے پیسے مانگے گا، میری خاطر وہ اس سے چھوڑ دے گا، لیکن بدلے میں مجھے اس کام میں اس کا ساتھ دینا ہوگا اور نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں اس کی دکان تک بھیجنا ہوگا، جس سے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے بھی یہی کہا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق ایک بہت بڑے گینگ سے ہے اور وہ یہ کام اکیلا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اور ویسے بھی وہ یہ کام چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس سے اچھی لگی تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ بات کسی سے بھی کہی تو میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو کہ اب تک اس نے باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس سارے واقعے سے میں ڈر گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس پر بھروسہ کروں اور کسے یہ سب بتاؤں۔ ابا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ میری مدد کیسے کرتے؟ اس کام کے لیے مجھے کسی ایسے انسان کی مدد کی ضرورت تھی جس کے بڑے تعلقات ہوتے، جبکہ میرے ابا عام سے اور سادہ سے انسان تھے۔ اچانک مجھے میری خالہ کے بیٹے کا خیال آیا تھا۔ اس کی نوکری پولیس میں تھی، اب تو وہ پولیس میں اچھی پوسٹ پر تھا، وہی میری مدد کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ کس طرح سے اس کو انکار کر دیا تھا، ایسے میں کس منہ سے اس سے مدد مانگتی؟ لیکن جو بھی تھا مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ میں جتنی بھی خود پسند اور لالچی قسم کی لڑکی سہی، لیکن عزت کے معاملے میں عام لڑکیوں کی طرح تھی۔ اس ساری عیش و عشرت سب سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز تھی، اس لیے میں نے اپنی کزن سے بات کی اور اسے ساری حقیقت دے دی کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس گینگ کو پکڑنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اب جب کہ میں اس کا ساتھ دوں گی
तो वो बहुत जल्दी इन लोगों तक पहुंच जाएगा। इसे हर मामले में मेरे साथ की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला सबसे गलत किया था। अब्बा ठीक कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। इस शख्स से शादी कर ली थी। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी कज़न का साथ दिया और वो जैसा कहता था मैं वैसा करती गई। अपने शौहर से छुपकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती थी, क्योंकि एक मैं ही थी जो इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सकती थी, क्योंकि मैं इसके घर में रहती थी, इसके सारे राजों से वाकिफ थी। इस मामले में मैंने पुलिस का पूरा साथ दिया था और अपने कज़न की मदद से जल्द ही अपने शौहर को उसके पूरे गैंग समेत पकड़वा दिया था। अब वो सलाखों के पीछे था। उसका यही अंजाम होना चाहिए था कि उसने बहुत सी मासूम लड़कियों को धोखा दिया था, उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। जब सब लड़कियों को ये मालूम हुआ कि वो पकड़ा गया है, तो वो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आई थीं। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मैं उनके लिए मसीहा साबित हुई हूँ। मैंने उनकी मदद की, उन्हें इतनी बड़ी मुश्किल से आज़ादी दिलवाई थी। वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो मासूम एक सूट के लिए अपनी तस्वीर देने पर तैयार हो जाती थी। उनको लगता था कि एक तस्वीर देने से क्या हो जाएगा, उन्हें कीमती सूट मिल जाएगा। लेकिन बाद में जो सूट फ्री में मिला था, उन्होंने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की थी। उनको फ़ोन आते थे, उनसे पैसे मांगे जाते थे। उन्होंने जो कुछ अपने पास जमा किया हुआ था, अपनी माओ का जेवर, थोड़े बहुत पैसे जो जमा किए थे, वो सब उन्होंने दिए थे। लेकिन फिर भी उनकी जान न छूटी थी। मैं हमेशा से अपने आप से मोहब्बत करती थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। लेकिन आज जब मैंने इन लोगों की मदद की थी, इनके चेहरों पर खुशी देखी थी, तो आज मुझे महसूस हुआ था कि इंसान को असल खुशी दूसरों की मदद करके मिलती है, ना कि अपनी ख्वाहिश पूरी करके। बहुत जल्द मैंने अपने शौहर से खुला ले ली थी, अपने घर वापस आ गई थी। अब्बा से मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी। अब्बा भी ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते थे। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। अम्मा का कहना था कि अगर किसी की गलती उस मामले में सबसे ज़्यादा थी तो उनकी गलती थी, उन्हें मुझे रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा शय दी थी। उन्होंने मुझे समझाया ही नहीं कि पैसे का लालच हमें मुश्किलात में डाल देता है। उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया था कि किस तरह जो हमारे पास होता है उसमें खुश रहा जाता है। जो भी हुआ था हम सब उसको भूल चुके थे और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की थी। मेरी खाला ने दोबारा से मेरा रिश्ता मांगा था। इस पर मैंने हाँ कर दी थी और अपने उसी कज़न से शादी कर ली थी जिसने सारे मामलात में मेरी मदद की थी। इसकी और तरक्की हो गई थी। पुलिस में बड़ा अफसर बन गया था, जिसकी वजह से उसे बड़ा घर और गाड़ी मिली हुई थी। लेकिन इस बार मैंने चीज़ों की खातिर शादी नहीं की थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश भी थी और मुतमईन भी, क्योंकि जो कुछ मेरे पास था वो मेरे शौहर की हलाल की मेहनत की कमाई से हासिल किया हुआ था, ना कि किसी को धोखा देकर या किसी से फ्रॉड करके उसने हासिल किया था। वो एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी। मुझे भी उसने यही सिखाया था कि आइंदा मुझे भी उसके साथ मिलकर दूसरों की मदद करनी है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए कि असल खुशी उसी से मिलती है। हम में से बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो नादानी में, मासूमियत में, दूसरों की बातों में आकर वो सब कर गुजरती हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सबसे मेरी यही गुजारिश है कि कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि आजकल कोई भी इतना अच्छा इंसान मौजूद नहीं जो आपको इतनी महंगी चीज़ें मुफ्त में दे। वो अपनी चीज़ की कीमत आपसे ज़रूर कभी ना कभी वसूल करके रहता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी खौफनाक और भयानक हकीकत है कि बहुत सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं और बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होते हैं। ये एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कोशिश है ये समझाने की कि लोग किस तरह से दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये हम पर होता है कि हम किस तरह अपने आप को इनके शर से महफूज रख सकते हैं। कभी भी किसी इंसान पर इतना भरोसा न करें कि इसको अपनी तस्वीर दें या फिर किसी भी किस्म का कोई ऐसा राब्ता रखें। आजकल किस किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इनसे पैसे लिए जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हम मुआशरे में फैली इस बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इससे महफूज रख सकते हैं। कभी भी किसी चीज़ या किसी पैसे के लालच में आकर कुछ ऐसा हरगिज़ ना करें कि बाद में आपको इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़े। अपने प्यारों की हिफाजत खुद करें,
हर बार हर किसी को बचाने वाले नहीं मिलते और ना ही किस्मत हर किसी का इतना अच्छा साथ देती है। हर इस चीज़ से दूर रहें जिस पर थोड़ा सा भी शक हो कि ये ठीक नहीं है। अपने प्यारों को भी इससे दूर रखें। आपके आसपास जो लोग ना समझ हैं और इस चीज़ से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में समझाएं, उन्हें बताएं और उनका इस मामले में भरपूर साथ दें। अगर कोई इस किस्म के मसले में फंस जाए तो उसे अकेला मत छोड़ें, बल्कि उसकी मदद करें और उसे इस मुश्किल से निकालने में हर मुमकिन कोशिश करें।